Yes, sir. Very good. So whether planning to now join in every day or just it's a like today you have got some time, huh? So you are working somewhere, you are a working professional or doing only this course only? Sir, I'm a working professional, sir. Yeah. So can you please introduce yourself so that we'll be knowing each other? From where Yes, sir. actually Yes, you sir. belongs and Sir, just my name explain is about your. Sanjani Kiran. Yeah. Sir, my name is Sanjani Kiran. I have Hmm. completed my bachelor's as well as master's from Banaras Hindu University. I native to Okay. Karnataka, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now at present you are station where you are working? सर मैं काम फिलहाल नहीं करता हूँ सर मैं रिसर्च का काम मतलब कर रहा हूँ सर पीएचडी में काम अच्छा, कर रहा हूँ सर फिलहाल अच्छा, जी अच्छा, सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली ये आरएसजीएस का जो नॉलेज है ना, ये आपको हेल्प में आएगा जी सर आर-एन-डी काम में भी और बाकी ये श्योर हो आएगा। और एक हम लोग एक ग्रुप बनाए थे, तो ग्रुप में जो एडमिन हैं आप लोग, ये किरण को भी आप लोग ऐड कर दीजिए, सो दैट अगर कुछ अपडेट्स होता है तो ही विल बी अपडेटेड ऑन एनीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग और वो हाँ, आप लोग ऐड कर थैंक यू दीजिए। सर थैंक यू सर या सो लाइक हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि ऑन टुडे क्लास it will be like one review type of whatever we have discussed earlier. You can have some query and as you know we have completed two things. First on remote sensing, some basic of geoinformatics, and in the second one it's like some of the concept of uh, interpretation in terms of visual interpretation and some other topics. So now actually we'll be moving toward the image processing. So whatever image we are using as an end user, so it actually goes through so many pre-processing works, and it is not like that we are getting it from the satellite image and directly we are not using. Okay, so in between the image or the image that we are getting from the NDC National Data Center, then NRSC are there, so they are doing some processing work, and in our part also, suppose in some image some issue of like clouds are there and so other image noise are there, so that things need to be solved before using as an end user. So this is the in this topic we will be discussing. But today, first of all, I would like to listen from you guys. Ki, in this journey of like last, sorry, in the last 7 8 days, or start we have started on 12th, no? Yeah. So in the 7 8 days of classes we discuss some application and other things. So if anybody you like to have some queries or you would like to add on something or some new innovative things or something is going on in your mind, then you can the floor is open to all you guys. You can take the opportunity to have a interaction with me. We can discuss. I like today is a holiday, na, so I was thinking so many people are going to join, but I think due to their individual engagement, I can say they might be involved in some other activities like that. Huh? So Pankaj Singha is there, and Balwinder, and Yes, sir. our Mr. या सो कुछ कहना है आपको? आज तो ये अपना एंड्रयूज नहीं है, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं हिंदी में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक।
नो उसको नो थोड़ा सर, दिक्कत होता है ना। क्लास स्टार्ट कीजिए। अ- अच्छा, ठीक है। और बलविंदर, ओके आपको सर, कुछ स्टार्ट कहना है? कीजिए। नहीं? नहीं सर, अभी तक तो सब ठीक है, ऑल ओके है सर। आप जैसे जैसे क्लास है, अभी जो पुराना अगर रिवाइज करेंगे तो हम, अगर कुछ लगेगा तो पूछ लेंगे, अच्छा, नहीं तो ठीक है। ठीक है सर, ओके एकदम। ठीक है, फिर हम ये करते हैं, जैसे थोड़ा सा हमको आइडिया हो गया है, जैसे रिमोट सेंसिंग कैसे होता है, क्या है, थोड़ा सा अपना जो रेस्टर वेक्टर इसके बारे में भी आइडिया हो गया है। रेजोल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस किए थे। मतलब मैं एक बस 2 मिनट्स में एक ये दे देता हूँ, क्विक रिकैप बोल सकते हैं। तो और फिर हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़े हैं कि क्या क्या फील्ड में ये यूज होता है। देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन कीज। क्या क्या इमेज इंटरप्रिटेशन कीज होता है। बाय यूजिंग दोज कीज एक्चुअली वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये सब चीज़ एक्चुअली बेसिकली हम लोग पढ़े हैं। तो अभी क्या है कि जैसे हम लोग को आइडिया हो गया है कि एक रिमोट सेंसिंग में जैसे सैटेलाइट इमेज होता है, तो इमेज क्या होता है, क्या है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि सपोज आप दो बच्चे हो, एक वन इज असाइंड विथ ए प्रोसेस्ड इमेज, एक को एक प्रोसेस्ड इमेज दिया गया है और एक को जो है एक अनप्रोसेस्ड इमेज दिया गया है। तो इफ द पर्सन हु इज हैविंग ऑन प्रोसेस इमेज, लाइक सपोज क्लाउड कवर हो गया या फिर नॉइज है, डिस्ट्रिपिंग है, ऐसे बहुत सारे मतलब इमेज को प्रोसेस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। हम कुछ एनहांसमेंट करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, तो उसके बारे में एक्चुअली हम लोग ट्राई करेंगे उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो कोई आप बता सकते हो कि जैसे जो डीआईपी हम बोलते हैं ना, डीआईपी क्या होता है और उसका बेसिकली उसमें क्या क्या चीज का हम आ, पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है। एनीबॉडी? पंकज सिन्हा, कैन यू इलाबोरेट इट? According to you, what is a DIP and what type of components comes under a Sir, DIP concept? Yes. DIP means digital image processing. Okay, sir. Okay. Hmm. Before we use the satellite images, some process such as image mosaic, cloud Hmm. removal, this image stretching are very Hmm. essential uh, for enhancing the image quality, and it is then further used for different environmental field. जैसे सर Okay. तो इमेज को या हाँ, ओके ओके सर, बोलिए बोलिए। कोई भी चीज़ है, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि आप रिमोट सेंसिंग छोड़ दीजिए। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आता है, ब्यूटीफाई होता है ना। मतलब हम आज देखते हैं कि किसी को हम नहीं देखे हैं, बट वो उसका फेस को अगर समवन इज हैविंग ए डार्क कॉम्प्लेक्शन, देन आल्सो सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, दे कैन कन्वर्ट दैट डार्क कॉम्प्लेक्शन टू ए फेयर वन, होता है ना। तो ये क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या चलता है कि उसका जो है ना, उसका पिक्सल और उसका एनहांसमेंट करते हैं, उसको हम एनहांस कर देते हैं। तो बहुत बहुत टाइप का एनहांसमेंट होता है। आप जैसे मोबाइल में होता है, ये भी एक तरह का इमेज एनहांसमेंट ही है। या फिर हम क्या करते हैं, ब्लर इमेज है तो ब्लर इमेज को भी हम कुछ हद तक उसको हम क्लैरिटी कर सकते हैं। तो सेम प्रिंसिपल जैसे आप मोबाइल में करते हो ना, उसी टाइप का ही आप, ऐसा तो नहीं है बट मान के चलिए कि उसी टाइप का है। एक इमेज को हम अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं, अच्छा एक्यूरेट कर सकते हैं, सो दैट बिकॉज क्योंकि हम आर्ट फीचर्स का बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हम वेरी क्या बोलते हैं, प्रिसाइसली वी हैव टू डिस्टिंग्विश देम। एक एग्जांपल है, सपोज आपका एक पॉन्ड एरिया है, ठीक है, या फिर एक स्वम्पी रीजन है, एक रिवर के साइड का है ना, कि कुछ एरिया है जैसे वेटलैंड एरिया है। तो वहां पे सपोज आपका सैटेलाइट इमेज में कुछ उसमें कुछ जैसे वेजिटेशन वगैरह थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा सपोज ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो उसको अगर आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ना, तो मे बी ये पॉसिबल है कि समटाइम वाटर बॉडी कैन बी classed as a, or it can be grouped as a
वेजिटेशन, ऐसा होता है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज इफ वी आर हैविंग ए गुड इमेज, तो गुड इमेज इन द सेंस इट मस्ट बी हैविंग ए हायर रेजोल्यूशन, उसका हायर रेजोल्यूशन होना चाहिए, और it must be free from this type of error, as Pankaj rightly told कि we have to go for some mosaicing work. Mosaicing में कैसा है कि suppose your study area is a bigger one, like a district you have to work, and you are having the satellite image, but those satellite images they are not in a single frame. Okay, so your duty is to mosaic them, सारा चीज को एक जगह पे लाना है। तो बिकॉज क्योंकि इमेज में रो पाथ अलग अलग होता है, तो एक एक इमेज जो है, टाइल जो है, एक एक टाइल के बीच में देयर में भी सम लाइक ओवरलैपिंग हो सकता है, और कुछ जगह पे कुछ गैप हो सकता है। तो ये भी एक एक एरर है, इसको वी हैव टू रेक्टिफाई। ये एक एक तरह का है, जैसे मोजाइकिंग हो गया, या फिर बेसिक एनहांसमेंट तो हम करते ही हैं। तो एनहांसमेंट में भी अलग अलग एनहांसमेंट है, आपका कॉन्ट्रास्ट है और अदर है। और क्या है कि जैसे अच्छा, आई थिंक कोई एक लास्ट क्लास में आई थिंक रिमोट सेंसिंग के बेसिक में शायद मैं डिस्कस किया था कि अबाउट रेजोल्यूशन मर्जिंग। ओके, तो इसके बारे में एनीवन कैन लाइट अपॉन दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन मर्जिंग, बिकॉज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस। बलविंदर, आप बता सकते हो कि रेजोल्यूशन मर्जिंग क्या होता है और उसका हम क्यों मतलब यूज करते हैं उसको? सर उनका मतलब बेसिकली किसी की रेजोल्यूशन अप है, किसी की डाउन है, तो वो हमें रेक्टिफाई नहीं, एनालाइज करने में थोड़ा इशू रहता है कि इमेज को। तो अगर उनकी इक्वालिटी कर दी जाए, अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हो जिससे इक्वालिटी हो जाए, तो सेम चीज को आइडेंटिफाई करने में जो इमेज के हाफ इमेज में अलग है और दूसरे में अलग है, तो आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाती है सर। ने एक मतलब और थोड़ा डीप सर अगर हम सर जाए। हाँ सर हाँ, अंजनी आप बोलिए। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, जी आराम सर, से सर बोलिए। जो पैनक्रोमेटिक इमेजेस रहती हैं उनकी जो रेजोल्यूशन हम्म। क्वालिटी रहती है वो कंपैरेटिवली हाई रहती है, ठीक राइट सर। राइट राइट और राइट बाकी राइट। जितने भी कलर इमेजेस निकलती हैं उसकी जो रेजोल्यूशन कम मल्टीस्पेक्ट्रल रहती है। कलर कम बट रहता है। यस 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 यस, बट उसकी डिटेलिंग अच्छी खासी रहती है। तो जब हम दोनों को हम्म। मर्ज करते हैं तो हमें तो एक द इमेज मिलता है। मर्ज तो प्रोडक्ट, उस हाँ इमेज मर्ज को, हाँ प्रोडक्ट सर, जो है उसको हम रेजोल्यूशन वो मर्जिंग क्या कहते है हैं दैट। शायद। यस, राइट जी सर। राइट राइट राइट। ये बलविंदर, ये जो है ना, आई थिंक अभी जो अंजनी ने जो बोले ना, ये एग्जैक्टली राइट है। और आप जो बोले हैं एप्लीकेशन पार्ट में भी यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू से द सेम थिंग, बट आई थिंक अंजनी ही हैज वर्कड इन सम लाइक रियल टाइम में इमेज प्रोसेसिंग काम वो किए हैं, दैट्स वे थोड़ा सा क्लैरिटी में वो बोले हैं। और यही चीज इन आवर लास्ट क्लासेस, नॉट लास्ट, आई थिंक कोई एक क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे अबाउट दिस रिजोल्यूशन मर्जिंग। उसमें मैं एक एग्जांपल दिया था कि सपोज हम एक अर्बन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अर्बन प्लानिंग में क्या है कि सपोज जैसे पैंक्रोमेटिक इमेज होता है, जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है, उसका बेसिकली रेजोल्यूशन हायर होता है, बट वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बट अगर वही सेम जगह का अगर हम उसका कुछ कलरफुल इमेज लेते हैं, मतलब मल्टी कलर का लेते हैं, और दोनों का हम मर्ज करते हैं, दोनों रेजोल्यूशन मर्ज करते हैं, सो दैट द मर्ज प्रोडक्ट इट विल कंटेन द आपका पैंक्रोमेटिक का भी क्वालिटी वो ले लेगा और इसका भी ले लेगा। सो दैट पैंक्रोमेटिक में आप क्या है, यू विल बी गेटिंग ए मोर डिटेल, आपको ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और आपका कलर में क्या है, रेजोल्यूशन कम है, बट आपका जो फीचर का डिस्टिंक्शन करना है ना, जो डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है, सो इन दैट वे इट विल बी हेल्पिंग यू ए लॉट। ठीक है, तो ये है रेजोल्यूशन मर्जिंग का। ये अलग अलग होगा, मतलब बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन, आवर कस्टमाइजेशन, हम कैसे काम करते हैं, इन व्हिच फील्ड वी आर वर्किंग। सो दैट विल बी एक्चुअली डिसाइडिंग कि हम उसको वेदर वी विल गो फॉर द रेजोल्यूशन मर्जिंग और विल बी taking both the image in a separate, and we can have the comparison। ये अब हमारे ऊपर, it always depends on our customization thing। ओके, तो ये ठीक है। ऐसे इस टाइप का जो है ना इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है, हमारा ये जो क्लास हम करते हैं ना, इसमें इस टाइप का ही मीन करता है ये, क्योंकि
ऐसे तो यार देखो, किताब में ये जो है स्लाइड कर दो, उसको पकड़ो, कुछ मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सा उस टाइप का हटके करना चाहिए। और एक ऐसा है कि जैसे कोई एक आप लोगों में से कोई जो मतलब काम कर रहे हैं, आप बता सकते हो कि सपोज मेरे पास एक स्टडी एरिया है। तो स्टडी एरिया में सपोज मुझे कुछ मॉनिटरिंग करना है, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ए टेम्पोरल चेंजेस एनालिसिस। ओके, तो उसके वहाँ मतलब क्या किस टाइप का मैं मतलब कर सकता हूँ, हाउ हाउ टू यूज द सैटेलाइट इमेज एंड मतलब कैसे मैं करूँ उसको। एनीवन? मनीष, कैन यू, आप बता सकते हो? अदरवाइज दास गुप्ता, आप बोलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो? जी सर, सुनाई दे रहा है सर। ठीक है, चलो फिर इसका कुछ ये सर प्रिपेयर किया हूँ एक्चुअली मैं। आप किस चीज का मॉनिटर करना चाहते हैं वो पहले आप क्लियर बोलते तो नहीं नहीं, इजी मैं होता। ये बोला, एक एक एरिया है, उसका सपोज हम्म, एक टेम्पोरल चेंजेस है। दैट एरिया इट कैन बी हम्म, लाइक कोस्टल एरिया है, सपोज फॉर एग्जांपल इज ए हम्म, कोस्टल रीजन। So in हम्म, that case, how you can use the remote sensing technology and mostly concentrate on the processing part, image processing part में how it can be हम्म। useful, and scenario is also like it is a rainy season, ठीक है? तो उसी टाइम में कैसे आप यूज करोगे, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको अच्छा अच्छा रियल टाइम बेसिस में कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस। सर, अगर हम टेम्पोरल चेंजेस कोई एरिया का देखना चाहिए तो हम लैंड यूज लैंड कवर एनालिसिस से कर सकते हैं। हम मान के चलो नहीं नहीं, लैंड दो यूज लैंड कवर तो टाइम पीरियड करेंगे। का। लैंड यूज लैंड हाँ, कवर तो सुनिए सुनिए, लैंड यूज लैंड कवर तो करेंगे। हम्म, इमेज के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए, मैं वही चाहता हूँ। लैंड यूज तो वो तो आ गया, वो तो इमेज अच्छा प्रोसेसिंग अच्छा। करने के बाद इमेज ठीक हो गया, हम उसका फिर हम्म, क्लासिफाई कर दिए, दैट इज ओके। इमेज प्रोसेसिंग में क्या कर हम्म। सकते हैं, अगर फिर मैं ये बोला ना, कंडीशन ये है कि बारिश का टाइम है, वेदर इज नॉट गुड, सर, तो उसी बारिश का टाइम टाइम में हाउ। है, बारिश का टाइम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्लाउड कवर ज्यादा आता है। ठीक है। तो ये बारिश के ये टाइम ये चीज सुनना क्लाउड पड़ रहा है। क्लाउड रिमूवल प्रोसेस हम टेक्निक अप्लाई करके उस सैटेलाइट इमेज से क्लाउड को रिमूव करके फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। बस बस बस, ठीक है। ये दिस इज द आंसर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ओके ओके सर। तो ये भी होता है, जैसे सपोज वी आर गोइंग टू डाउनलोड सम इमेज फ्रॉम एनी सोर्सेस, लाइक इट मे बी यूएसजीएस हो गया, या फिर हमारा इसरो का भुवन हो गया, या भूनिधि जो भी है। तो उसमें से भी जब हम डाउनलोड करते हैं, ये ऑप्शन रहता है क्लाउड कवर को कितना है, कितना हटाना है, ये सब भी रहता है। उसके हिसाब से भी मतलब वो लोग प्रोसेस करके भी रखते हैं, वो भी मिल जाता यस है सर, इमेज। यस सर। या हाँ, अगर नहीं मिल रहा है, यस, नॉर्मली सर लेस देन 10% क्लाउड कवर को हाँ वो तो फील्ड के चलता है। लिए कंसीडर कर सकते हाँ हैं। हाँ, कर सकते हैं, ओके। राइट। चलो ठीक है, देन आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड द प्रेजेंटेशन। क्या है इसमें आज? मैं कुछ लिया हूँ इसमें, जस्ट मिनट। ये विजिबल हो रहा है ना पहला स्लाइड? यस सर। अच्छा चलो, तो यार चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इसमें हमारा प्यारा मतलब हो गया। आज का एक, हाँ हाँ बोलिए। चेंज हो गया सर। हाँ हो गया ना, चलो ठीक है। तो अच्छा, अभी क्या है कि जैसे हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो
इमेज प्रोसेसिंग जो है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत हद तक डिपेंड ऑन द गुड क्वालिटी ऑफ एन इमेज। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम सपोज वी कैन गो फॉर सम एनहांस करते हैं, कहीं पे मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, या फिर जो सैटेलाइट इमेज जो है ये सब करने के बाद वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन और हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है इसको हम अगर एक कंपाइल सेंस में अगर बोलते हैं तो उसको इमेज प्रोसेसिंग बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में क्या है, कुछ इमेज एक्विजिशन का जैसे प्रोसेस होता है कि हमारा सेंसर सिलेक्शन हम करते हैं कि बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन। सपोज पंकज मान लो वो काम कर रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में, और सपोज मैं सपोज आई एम वर्किंग ऑन ए कोस्टल एप्लीकेशन, और कोई सपोज सॉइल साइंस में काम कर रहा है, कोई माइनिंग में कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन अगर हम सिलेक्शन करते हैं which type of sensor is there and what type of डाटा हमको चाहिए। तो कुछ जगह पे क्या है कि हम लोग को वी कॉम्प्रोमाइज विथ रेजोल्यूशन। अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा है, सपोज स्टेट हम लोग को काम करना है, तो मे बी इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए गुड रेजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट। इन दैट केस हम वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द रेजोल्यूशन, बट उस जगह पे क्या है, हम लोग को एरिया ज़्यादा बड़ा है तो एरिया के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डाटा एक्विजिशन में हम वी कैन गो फॉर सम बेस डाटा। बेस डाटा मतलब आपका क्या है कि सपोज कुछ टॉपोसिट है, ये सब उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। एंड डाटा ट्रांसमिशन में क्या है कि जो हम एक्वायर्ड डाटा है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम हमारा जो एंड यूजर के लिए हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोले कि दीज आर द very fundamental things of image acquisition, and along with its uses to a end user or some other person who are going to use in a bottom line. तो अगर एक मोटा मोटी हम बोले तो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक में बहुत बेसिकली होता है आपका, जैसे कुछ ज्योमेट्रिक करेक्शन हम करते हैं। सपोज इन दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स करेक्शन ऑफ सम डिस्टॉर्शन अगर है कुछ इमेजरी में तो उसको हम प्रोसेस करते हैं टू एंश्योर ए एक्यूरेट स्पेशल पोजिशनिंग। मतलब जो आपका जो एरिया जहाँ पे है उसका कुछ एग्जैक्टली लोकेशन को करने के लिए वी गो फॉर सम ज्योमेट्रिक करेक्शन। और अगर आपका कुछ टाइम में भी आपका सम टाइम वी में हैव सम रेडियोमेट्रिक एरर्स आर देयर, तो दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, उसको हम कुछ रेडियोमेट्रिक करेक्शन करते हैं। और जैसे कुछ आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है, जैसे सपोज कहीं पे स्कैटरिंग ज़्यादा हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसी टाइम में इन ऑर्डर टू हैव ए गुड व्यू और ए क्लियर व्यू हम कुछ एटमॉस्फेरिक करेक्शन भी करते हैं। तो आप लोगों में से बताइए कौन कौन इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यू हैव वर्कड अर्लियर। आई थिंक पंकज तो किया है शायद, और अभी जो हमारा अंजनी जो है, या ये दोनों तो किए हैं लग रहा है। और ये दोनों को छोड़ के और आप कौन सा सॉफ्टवेयर में आप काम किए हो बताओ मुझे। एडास में तो किए होंगे यार, या फिर एनवी में शायद, नहीं? हेलो। Yes, sir. I basically use ADAS, NV, QGIS, and ArcGIS, sir, for image processing software. हाँ, नहीं आरजीएस तो आजकल क्या है कि ये पहले आप अगर 5-6 साल पहले आप अगर डिस्कस किए तो उनका तो नहीं था इतना। पहले नहीं होता था। अभी ArcGIS का जितना भी अपडेटेड वर्जन है उसमें इमेज प्रोसेसिंग का सारा टूल्स आ गया है सर। सब आ गया। अभी तो 4-5 साल पहले नहीं था। नहीं था। अभी जैसे अभी जो हम प्रो यूज जब करते से हैं, सर जैसे वो 10
10 एंड अबव वर्जन का आ गया हाँ है, सारा तब से सारा आ गया है उसमें, बहुत सारा आप सर आ इमेज गया। प्रोसेसिंग आ 9 गया है, पॉइंट वर्जन क्योंकि में नहीं था सर, नहीं उसमें नहीं था। अभी अभी जैसे नहीं 10.7 आ था गया है सर। आपका प्रो, अभी हम जैसे यूज कर रहे हाँ हैं, एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना, ये हाँ सर, मार्केट आरजीएस को प्रो। ऐसे किया है कि पूरा ईच एंड एवरीथिंग दे आर यूजिंग अभी। आप आप लोग कोई प्रो यूज किए हो, यस आरजीएस सर, प्रो यस। में काम किए हो? बहुत अच्छा है, जबरदस्त फीचर्स है मैं उसमें। सर और एंटरप्राइज, मैं 1-2 बार यूज किया हाँ था बोलो। सर। मैं अच्छा बहुत आरजीएस अच्छा है, प्रो मैं एक अभी दो खुद बार यूज यूज करता किया हूँ। था। हाँ, वो अच्छा है, मगर हम्म। उसके लिए सब्सक्रिप्शन वर्जन चाहिए सर। हाँ नहीं नहीं वो तो है, वो इट दे डील विद क्रोड्स एक्चुअली। और एंटरप्राइज है, हाँ, एंटरप्राइज में काम यस सर, नहीं किए यस। होंगे नहीं? हाँ नहीं अभी सर। एंटरप्राइज का एक मतलब ब्यूटी ऑफ एंटरप्राइज बता रहा हूँ। उसमें आप जैसे कुछ हम पोर्टल बनाते हैं ना, सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, बाय हम्म, यूजिंग दोज डेटा हम कुछ छोटा मोटा पोर्टल बनाते हैं ना, तो ये सब चीज जो है ना, इट्स वेरी इजी टू आप वर्क इन एंटरप्राइज। आप अगर एंटरप्राइज यूज करते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, कुछ पोर्टल है, आप आराम से जियो पोर्टल डेवलप कर सकते हो। बट राइटली पंकज टोल्ड, बहुत पैसे लगते हैं ये, मतलब आपको अगर एक्सेस है, फैसिलिटी है, सपोज यू आर वर्किंग इन सम हम्म, गुड कंपनी और इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब टूल्स बहुत सारा जल्दी होता है, बहुत सारा चीज़ है, प्रोसेसिंग भी बहुत यस सर, फास्ट है। यस। चलो जो लोग नहीं किए हैं भी, आप ट्राई कीजिए ये सब यूज करने के लिए, और नहीं तो अदरवाइज QGIS तो है ही, और आजकल RGS भी मिल जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उसका वर्जन मिल जाता है। चलो ठीक है। अभी यस। आपका ये, हाँ तो अभी कुछ जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि अ, हमारा जो इमेज है, इमेज में हम मोस्टली वी कैन गो फॉर सम डिफरेंट टाइप ऑफ एनहांसमेंट टेक्निक, लाइक इट मे बी ए कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट, और इट में भी ये नॉइज रिडक्शन हम करते हैं, या फिर एज एनहांसमेंट, या फिर शार्पनिंग ऑफ इमेजेस। तो ये क्या है, देखिए ये एक एक टॉपिक जो है ना, कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट, एज एनहांसमेंट, इट इटसेल्फ एक एक 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स 5 आवर्स का टॉपिक है एक्चुअली। तो क्योंकि हम वी आर मजबूर हैं कि एक क्लास में 2 क्लास में ही कंप्लीट करना पड़ता है सारा, और आपका इग्नू का तो है ही, जितना टाइम दिए हैं, जितना क्लासेस है उसके अंदर ही कंप्लीट करना है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बस एक आइडिया ही हम वी कैन डिस्कस ओनली। तो कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वी कैन स्टेज कर सकते हैं, तो उसका फीचर्स को मोर विजिबल और इम्प्रूव विजुअल इंटरप्रिटेशन जो है उसको बेहतर करने के लिए वी कैन गो फॉर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट। और अगर आपका एज एनहांसमेंट में क्या है, जो सपोज टू आपका दो, क्या बोलते हैं, बाउंड्री जो है ना, सपोज दो दो टाइल्स का है, उसके बीच में जो गैप होता है उसमें मान लीजिए कुछ इशू हुआ है, तो इस टाइप का, या फिर दो एडजॉइनिंग जो है ना, उसके वहाँ अगर कुछ फीचर्स आ रहा है, कुछ एरिया आपका आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा हम शार्प ट्रांजेक्शन जो है उसको बेहतर बनाने के लिए वी कैन गो फॉर सम एज एनहांसमेंट टेक्निक। देन आपका जो ओवरऑल क्लैरिटी, जैसे आपका जो है ना, क्या बोलते हैं, आपका जो कैलिब्रेशन जो होता है, जो सेंसर है चल रहा है, मशीन है ना, एक मशीन ही है, तो वो सैटेलाइट जब मूव कर रहा है तो इट प्रोड्यूस सम नॉइज। सो बेस्ड ऑन दैट नॉइज एक्चुअली हमारा दैट आल्सो नीड्स टू बी reduce, or we always try to remove it, because वो अगर रहेगा, because see suppose you are doing a land cover on a 50,000 scale or more than that scale, then it is not going to affect a lot. But suppose you are working on a mining sector or some other sector where higher resolution is there, your higher resolution is required, and the information जो हम लेते हैं ना, वो बहुत प्रिसाइज अगर रिक्वायर्ड है, मान लीजिए you are working in a defense sector. I think in our first or second class, some seeing was there.
ही इज फ्रॉम डिफेंस सेक्टर, सो अगर आज वो नहीं है यहाँ पे क्लास में, बट ऐसे जो लोग दे सपोज दे आर वर्किंग इन एयरफोर्स और हमारा डिफेंस ये सब में ना एक्यूरेसी बहुत बहुत ही जरूरी है। तो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ स्मॉल image enhancement technique also very it plays a very vital role, and also in some cases sharpening of images also required, where we are high frequency of information हम लोगों को जहाँ पे required होता है, तो in that case also we can go for image enhancement technique। देन ये जो है इसमें आप देख सकते हो कि आप जैसे थ्रेशोल्डिंग है, सेगमेंट अप्रोच जो करते हैं ना, थ्रेशोल्डिंग करते हैं जिसमें कि डिफरेंट पिक्सल जो है उसका क्लासिफाई करते हैं। और अच्छा, आप लोग कौन किसी को क्लासिफिकेशन काम किए हो, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, ऑन सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, यस सर, कुछ मैं आइडिया है किया किसी हूँ को? सर नहीं, आप मत बोलो यार, जो किए हो आप मत बोलो। जैसे ये पंकज और ये अपना कहाँ गया, अंजनी, आप दोनों मत बोलो। बलविंदर, मनीष जी, आप ओके सर। लोग काम किए हो उसमें कुछ क्लासिफिकेशन में, इमेज क्लासिफिकेशन? नो सर। बलविंदर, आर यू देयर, और बस ऑन करके कहीं चले गए हो? नहीं सर, मैं इधर ही हूँ, मैंने बोला सर। आप काम नहीं किए हो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, ऑन सुपरवाइज नहीं में? सर, एक्चुअली मेरा जो इनिशियली बैकग्राउंड था वो फील्ड सर्वेयर ये था सर, मैं फील्ड सर्वेयर था पहले। हाँ, नहीं ठीक है, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ये रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये कि टाइम निकालना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करना है, तो आराम से ये हो जाएगा। इतना राइट। इसमें क्या है कि देखिए, जो इमेज को हम क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे सपोज हमारा एक ब्लॉक है, या फिर आपका जो आप ताल्लुक बोलते हैं ना, ताल्लुक या जिला हो गया, तो उतना एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट का आपको अगर सपोज लैंड कवर क्लास बनाना है, तो मैनुअली अगर इफ यू विल गो फॉर ए उसका जो क्लासिफाई करते हैं, तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो उसको क्या है कि सपोज हम कुछ उसका जो इमेज को देख के उसका अगर हम क्लासिफाई कर देते हैं, तो दो तरह का होता है। अगर ऑन सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है तो टोटल स्टडी एरिया है, तो आप डिसाइड किए कि माई स्टडी एरिया शुड बी क्लास ग्रुप्ड इनटू 20 और 30 नंबर ऑफ क्लासेस। तो क्या करेगा ना, वो टोटल एरिया को 20 या 30 जो भी आप दिए होंगे आपका जो क्लासेस, so based on that only it will classify, वो क्लासिफाई कर देगा। और सेकंड वन है कि अगर सुपर क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे यू आर सुपरवाइजिंग द इमेज, मतलब आप जानते हो कि दिस पर्टिकुलर पिक्सल ये जो है इट इज ए वाटर बॉडी, और इट मे बी ए सेटलमेंट, और इट मे बी ए फॉरेस्ट कवर और समथिंग लाइक दैट। तो बेस्ड ऑन दैट वो हम उसको सिग्नेचर एडिटर बोलते हैं। तो एक एक चीज को हम 15, 20, 25 किए उसका रन करते हैं, एरिया है, एरिया को इट विल क्लासिफाई बेस्ड ऑन दैट। तो टोटल तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, यू विल बी क्लासिफाइंग द टोटल एरिया, आप टोटल एरिया को क्लासिफाई कर सकते हो जाता है। तो उसमें बट ये होता है कि देन वी हैव सम डाउटफुल एरिया, क्योंकि हम कुछ जैसे 1-2% जगह में हम लेके ही एज ए सैंपल हम टोटल एरिया को उसको एड्रेस करते हैं। सो फॉर दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन सम एरिया
we may face a wrong classification also. तो based on our experience and also अगर कहीं पे doubt हो रहा है then we should go for a ground truth collection. हम फील्ड में जाके उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में। ये सब हम आगे देखेंगे, आपका जो आगे डिटेल में क्लास में जब होगा ना, ये क्योंकि ये वाला इसमें भी 3-4 क्लास दिया गया है ये इमेज प्रोसेसिंग में, तो जब हम उसको एक-एक करके देखेंगे आपका सिलेबस के हिसाब से। आज का जो है मैं सिलेबस के हिसाब से नहीं गया हूँ, आपको एक बेसिक इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे एक आइडिया देने के लिए आज का सेशन है। तो नेक्स्ट आई थिंक 27 में है आपका क्लास, तो 27 में जो है हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जैसे डिटेल मतलब जितना हो सकता है आपका सुपरवाइज जो भी आपका सिलेबस में जो है उसको पढ़ेंगे। देन कुछ फीचर एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, जैसे अभी जो व्हाटएवर हम डिस्कस किए, ये टोटल स्टोरी एरिया है, उसमें आपका बेस्ड ऑन हम उसको जैसे शेप, साइज, टेक्सचर और अदर जो एसोसिएशन, ये सब हमारा क्या है, डिफरेंट कीज ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन। तो ये सब कीज को यूज करके वी एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सैटेलाइट इमेज। देन जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन स्कीम, सो इट मे बी ए सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, इट मे बी एन अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम उसको एक ऐसे तो बाहर में कर लेते हैं, बट इनसाइड सम सॉर्ट्स ऑफ एल्गोरिदम रन करता है। तो बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिदम एक्चुअली द डिफरेंट क्लासेस हम होता है, वो मतलब क्लासिफाइड होता है। देन ये एक आपका चेंज डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग में हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो इमेज रजिस्ट्रेशन में हम वी आर एक्वायरिंग डिफरेंट टाइम्स सैटेलाइट इमेज, हम उसको लेते हैं। देन इन चेंज डिटेक्शन एल्गोरिदम में हम उसको कुछ एल्गोरिदम यूज करते हैं कि हाउ इट इज चेंजिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट देन हाउ लाइक इन टेम्पोरल पैटर्न्स हो गया, या फिर उसका क्या है कि क्या कैटेगरी है वो कैटेगरी, और कौन सा कैटेगरी में कन्वर्ट हुआ है इन बिटवीन दिस टाइम। तो ये सब का चेंज डिटेक्शन एंड हम वी कैन गो फॉर सम मॉनिटरिंग आल्सो। देन ये some application of digital image processing in remote sensing, remote जैसे कि हम तो we have already discussed all the things, but अगर हम उसको कुछ एक compiled manner में बोले तो in land cover mapping it is very useful, such as forest or urban area, then water bodies delineation, then obviously in resource management, and also it helps in a like a monitoring of environment and all. Then in agricultural monitoring also it is very useful, like accessing crop health, crop का health कैसा है, that can be monitored. Then अच्छा यहाँ पे जस्ट ए मिनट, अभी जो मैं बोला कि एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में इसको मैं जिसको पूछता हूँ वो प्लीज आंसर दीजिए कि एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में हाउ द सैटेलाइट इमेज इट कैन बी यूजफुल। Yasna, are you there? I'm expecting this answer from you. Am I audible or not? Okay, छोड़िए। और कोई है? हाँ, पंकज, कैन यू एक्सप्लेन कि इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन हाउ सैटेलाइट इमेज, या यू प्लीज आंसर, क्योंकि ये लोग सोए हुए हैं शायद। अरे यार कुछ पूछ सर रहे हो तो जवाब एग्रीकल्चर दो में ना। बहुत सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग का बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे हम टेम्पोरल क्रॉप कैलेंडर एनालिसिस कर सकते हैं, कौन से जगह में कौन से क्रॉप ग्रो हो रहा है, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और सॉइल वाटर क्रॉप स्ट्रेस मॉनिटरिंग कर मॉइस्चर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, बस हाँ, सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्लाई करके हम देख सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह में कौन सा सॉइल कौन सा क्रॉप के लिए एसेंशियल है और हाँ, सुइटेबल है, राइट एनालिसिस राइट कर we सकते हैं। can we बहुत सारे can go एप्लीकेशन for है सर। some, yeah, we can go for some indices, like it may be a यस सर। NDVI, we can go for NDWI, water index can be, moisture index कर हाँ, सकते हैं। तो so एनडीआई many कर सकते हैं, applications are मॉइस्चर there, इंडेक्स। right? हाँ,
राइट। सर क्रॉप यील्ड रेशियो हो गया सर, पेस्ट है कि हाँ नहीं ये सब हो गया सर, क्रॉप एरिया हो गया सर। राइट ये राइट। एनालाइज अभी एरिया एनालाइज भी कर सकते हैं स्टेट वाइज कि कौन सी स्टेट कितनी कौन सी क्रॉप पे ज्यादा अपनी जमीन को इस्तेमाल कर रही है एज पर हो सकता सीजन है। बाय सीजन। अभी देखिए सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे अभी मान लीजिए कोई एरिया में ड्रॉट होता था, मतलब आप याद कीजिए 5-10 साल पहले की बात। तो मान लीजिए गांव में कहीं पे ड्रॉट डिक्लेयर होने वाला है, वो क्या करते हैं, कोई एक एग्रीकल्चर का ऑफिसर आते थे, वो आंख में देखते थे, जैसे उसको, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो करते हैं, आई एस्टिमेशन होता है ना, इतना दूर तक वो क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से वो बोलते थे कि नहीं चलो ये एरिया ये ड्रॉट में आ रहा है। बट दैट वाज नॉट साइंटिफिक ना, वो साइंटिफिक नहीं हो सकता आप। और इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा जाके फील्ड में सारा चीज को देख के, एक एक गांव का सारा एक चीज एग्रीकल्चर का, जो पेड़ी हो गया, शुगर कैन हो गया, जो भी है, तो ना पॉसिबल नहीं था। बट अभी क्या है कि हम सैटेलाइट इमेज में एक एट ए ग्लांस हम देख सकते हैं ना टोटल कितना है क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पंकज, आप लोग मैं सोच रहा था कि आप लोग आंसर दोगे कि यूज ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, मैं थोड़ा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रॉप में, क्योंकि हाँ सर। एग्रीकल्चर में, हाँ, तो सर ये कैसे एग्रीकल्चर होता है में भाई माइक्रो बताओ। रिमोट सेंसिंग और जो यूएवी रिमोट सेंसिंग अनमैन्ड व्हीकल्स वो बहुत यूज हो रहा है क्रॉप राइट। मॉनिटरिंग के लिए, और भी क्रॉप में फर्टिलाइजर देने के लिए भी बहुत यूज हो रहा है सर। हाँ, वो तो मतलब बिकॉज एप्लीकेशन का सर क्योंकि क्लाउड कवर का कोई असर नहीं पड़ता है सर, नहीं तो पड़ता है, उसलिए राइट। माइक्रोवेव रिव यस जी यस जी जी जी, यस वो यस। कोई भी मौसम हो तो उससे अच्छा, वेदर का कोई उसका ज्यादा इफेक्ट। हाँ, इट इज ऑल वेदर सपोर्टिव, सो वी डोंट वेट टू फॉर ए गुड वेदर, ऐसा वेट करना नहीं पड़ता है। यस तो सर यस ये सर ठीक है। यस। और एक चीज है, मुझे एक मैकेनिज्म मैं जानना चाहता हूँ कि सपोज मेरे पास, देखिए, दो सिनेरियो है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, तीन सिनेरियो है। एक है, सपोज मेरे पास राइस कल्टीवेशन है, ठीक है, राइस का है एक, मतलब आप सब, मतलब पंकज आप लोग ठीक से सुनिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। मेरे पास एक है पेड़ी है, राइस पेड़ी का है एक है, ठीक है। और दूसरा मेरा है वेजिटेशन हुआ है, मतलब आपका वेजिटेशन मतलब इन द से वेजिटेबल हुआ है कुछ, ठीक है, टमाटर मतलब हो गया, या फिर पोटैटो, ऐसे कुछ कल्टीवेशन हुआ है। और तीसरा ये है कि शुगर कैन हुआ है, ठीक है। तीन सिनेरियो है आपके पास। तो how यस how यस। you are going to distinguish these three type of cultivation, and सर ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of क्या टेक्सचर सर, सबके टेक्सचर, टेक्सचर्स अलग रहते हैं सर। अलग ओनली टेक्सचर में आप ठीक से कर सकते हो। यह सर सर ऑन द पैटर्न बेसिस हो ऑफ गया सर, और वाटर रिक्वायरमेंट हो गया सर इनके। नहीं, ये तो ठीक है, यस ये सर, तीन पैरामीटर। ऑन द बेसिस मैं ऑफ एक, सर वेवलेंथ कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट कर सकते हैं। जैसे शुगर केन का हाइट ज्यादा है, वेजिटेबल हाँ का तो ठीक है, मीडियम है, सुनो राइस सुनो, का। हाँ। जस्ट ए मिनट, अभी अंजनी ने जो बोला वो भी करेक्ट है, पंकज ने जो बोला वो भी करेक्ट है। अभी पंकज ने जो एक वर्ड बोला ना, उसमें मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहता हूँ, वो है हाइट, ठीक है। हाइट सर। तो हाँ, नॉर्मली सपोज हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मली जो पैसिव रिमोट सेंसिंग में हम देख रहे हैं, सनराइज का सनराइज आ गया, फिर उसका हम जो नॉर्मली ऑप्टिकल इमेज हम यूज करते हैं, वो एक्टिव नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, ठीक है। इन दैट केस क्या है, हम नॉर्मली टोन, टेक्सचर, कलर, एसोसिएशन, ये सब जो बेसिक कीज ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, उसको यूज करके हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इट इज करेक्ट, आई एम टोटली एग्रीड ऑन दैट। बट अभी क्या है कि सपोज जैसे शुगर कैन का वो बोला कि हाइट है, वहां पे माइक्रोवेव का यूज होता है, ठीक है, माइक्रो रिमोट सेंसिंग होता है। तो यस अभी सर। थोड़ा सा पंकज, क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइट जो है, वो तो समझ गए हम, थोड़ा सा हाइट ज्यादा दिखेगा, लेकिन कितना हाइट है, कैसा है, वो कैसे मतलब कैलकुलेट होता है, आपको पता है क्या उसका, मतलब कैसे वो, हाउ हाउ व्हेन ए बीम इज देयर, जो क्या है, जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग, दे आर हैविंग देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी ना, बीम वो छोड़ते हैं फिर उसको कैप्चर करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एम आई राइट? तो उसमें कैसे होता है, मतलब कैसे हो सकता है, आप कैसे, हाउ यू आर थिंकिंग?
कि कैसे वो लोग उसको कैप्चर कर रहे होंगे, मतलब कैलकुलेशन कैसे कर रहे होंगे वो बताओ। वेजिटेबल का है सर और एक शुगर केन का। उसमें सर अगर हाइट को हम्म। देखना हो सर, अगर ऑप्टिकल में तो शैडो यूज करते हैं हम, बट अगर माइक्रोवेव की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सर हम्म। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो पल्स हाँ रेशियो है उसका, और अलोंग ट्रैक लेंथ क्या हाँ, है, ठीक है राइट सर। राइट तो राइट इस राइट। इन सब इन सब वॉल्यूम, बेसिस पे हम ये देखते हैं कि क्या उस, हाँ बस वॉल्यूम का भी देखते हैं ना, नहीं कितना, मतलब आपका जो अपर हाइट जो है ना, उसका अपर हाइट से जाके कितने से फिर अगेन वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपका सेंसर कैप्चर किया है, नहीं वॉल्यूम देखते हैं तो पता यस चलता सर। है कि कितना हाइट है। तो ये एक्चुअली चीज है ना, ये आपके मतलब वहां से सुनने के लिए मैं इतना देर अभी डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे आज का जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए। अभी आप जो वट एवर हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे होता है तो क्या है ना, थोड़ा सा वो याद रह जाता है। और हम जब एग्जाम में बैठेंगे, या फिर एग्जाम तो होता रहेगा यार, ये तो क्या है, आप लोग प्रोफेशनल हो, ये तो मतलब एग्जाम दोगे, असाइनमेंट दोगे, आप लोग पास हो जाओगे, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बट थिंग इज दैट ये सब चीज को ना हम डे टू डे लाइफ में, या फिर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, या फिर वो कैसे ये इसका नॉलेज हमको कुछ एड ऑन दे, कुछ कैसे कुछ वैल्यू एडेड सर्विस दे, किसको हमारा नॉलेज को कैसे एनहांसमेंट करे, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो पंकज काम कर रहा है कुछ सैटेलाइट इमेज में, या फिर अंजनी अंजनी वो काम कर रहा है, या फिर सपोज आई एम वर्किंग समवेयर, तो या आपका और कोई साथी है जो कि कुछ अलग में काम कर रहे हैं, तो किसी का कोई चीज में अच्छा मास्टरी हो, सपोज समवन पंकज, सपोज ही जो मास्टरी इन एमएल, मशीन लर्निंग में अच्छा काम कर रहा है, और बलविंदर मान लो वो कुछ का है, वो रिमोट सेंसिंग में या फिर सर्वे में, जैसे वो बोल रहा है कि वो वाज वर्किंग इन सम सर्वे सेक्टर, तो माइट भी उसका डीजीपीएस सर्वे ये सब में अच्छा अच्छा खासा उसका मतलब एक्सपर्टाइज होगा। तो बट दोनों अगर आप लोग मिलते हो, दोनों का नॉलेज एक्सचेंज करते हो ना, तो जैसे हम रेजोल्यूशन मर्ज बोलते हैं, ऐसे ही हम नॉलेज का मर्ज करते हैं ना, तो दैट कैन बी द आउटपुट प्रोडक्ट कैन बी ए गुड वन, है ना। तो ऐसा यस। होना चाहिए। बहुत अच्छा, ये अच्छा है आज के डेट में, ये बहुत जरूरी होता है ये सब चीज, ठीक है। चलिए आगे आपका ये एक एग्जाम्पल था, एक लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, इसका तो छोड़ो, मतलब बिफोर का क्या है, आफ्टर का क्या है। बिफोर में ब्लरिंग दिख रहा था, फेस देखो ब्लैकिश लग रहा था, बट आफ्टर में चमक रहा है, लाइक सम फेयर कॉम्प्लेक्शन इज देयर और समथिंग। तो इस टाइप का मतलब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनहांसमेंट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस, नॉइज, जो भी है ऐसे करते हैं। तो इमेज रेस्टोरेशन मेथड्स होता है कुछ, नॉइज रिमूवल, करेक्शन, ब्लरिंग, ये सब। और ये छोड़ो, ये कलर का, अच्छा इसमें एक दो स्लाइड आई थिंक रिपीट हुआ है, चलो ठीक है। जस्ट मिनट, ये अच्छा, आप लोग आई थिंक कोई एक मुझे क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में, या फिर कि आपका असाइनमेंट कुछ सबमिट करना है क्या, ऐसा कुछ किसी का शायद एक क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था ये कि हाँ असाइनमेंट तो सर हमें मालूम है, असाइनमेंट तो हम सबमिट कर देंगे, बट रिगार्डिंग हाँ। द सर प्रैक्टिकल जो हमारे जैसे 6 तो असाइनमेंट्स हो जाएंगे, 2 हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा, उनका दो हमने दो क्या क्या है बताइए, दो पेपर क्या क्या है प्रैक्टिकल में। सर प्रैक्टिकल में सर अभी मेरे पे वो आर दो आर सर एस का तो होगा प्रोजेक्ट रिमोट। रिलेटेड है। हाँ, हाँ हाँ। रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड है सर, जीएस का कुछ ना, अच्छा कि अच्छा, शायद उसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, वो है सर। ठीक है। तो उसको एक बाकी काम नहीं तो सर करते मैं हैं, सुनिए ट्यूसडे की सुनिए क्लास। अभी। हाँ, अभी ये लोग इग्नो वाले तो मतलब मैं हो गया, या फिर हम मेरा जो कॉलीग है सत्य सर जो हैं, तो जी जी। हम लोगों को ये
इग्नू के ओर से नहीं बताया गया, बट मैं एक अनऑफिशियली मैं ये जी कह सकता हूँ कि ऐसा होगा कि जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया ना, इसमें आप लोग क्या है कि एक खुद बनाएंगे, ठीक है। कि जैसे आपका सपोज बलविंदर, आप कुछ सर्वे के ऊपर या कुछ जो वट आपका इंटरेस्ट है, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग या जेएस का टेक्नोलॉजी आप यूज करके आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। वो आप आपके हिसाब से आप बनाएंगे। या फिर पंकज का हो गया, मान लो वो कुछ एग्रीकल्चर में, या किसी का कुछ भी हो सकता है, सुमित का कुछ हो सकता है, या फिर यजवाल, या कोई भी हो, किसी का कुछ भी, अलग अलग फील्ड आप ले सकते हो, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपको लगता है कि यू कैन डू बेटर, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को आप वी कैन डिस्कस, आप जो चीज लोगे ना, आप मेरे से हुआ या फिर सत्य जी से हुआ, क्योंकि सत्य जी आपका आगे जो है कुछ क्लास लेने वाले हैं। जैसे आपका उनका क्लास है शायद, इसमें है, जस्ट मिनट, उनका जीपीएस क्लास होगा सत्य का, और और कुछ क्लासेस हैं सत्य का भी। तो आप लोग जो है उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, आप जो जब फाइनलाइज करोगे। हाँ, जीपीएस में है सत्य, देन ये लेंगे वो आपका टेक्निक इन रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ये वाला पार्ट लेंगे। तो अब क्या है, एक एक चीज को डिस्कस करके आप एक एक टॉपिक फाइनलाइज कर देना। और उसको जब आप बना रहे हो ना, तो मान लीजिए कुछ कहीं पे आपका इशू हुआ, सैटेलाइट इमेज का इशू हुआ, या फिर मेथोडोलॉजी डेवलप करने में इशू हो रहा है, कुछ लिखने में हो रहा है, जो भी इशू होता है, आप लोग ऑन ऑफिशियली आप लोग हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर इसको कैसे करना है, क्या है। या फिर कुछ लोग होंगे जिनको की भी आइडिया भी है कि कैसे करते हैं, क्या है। तो उसमें मैं एक काम करूंगा, एक जो आपका ये जो थ्योरी वाला क्लास है ना, एक क्लास में पर्टिकुलरली मैं उसमें कुछ स्लाइड बनाऊंगा, जो कि प्योरली आप एक प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे ना, उसका एक स्केलेटन मैं कह सकता हूँ, एक स्कीमा रहेगा, ठीक है, क्या चीज कैसे करना है। तो आई थिंक वो आप लोगों को बहुत ये होगा, मतलब मैं हेल्पफुल होगा। यस और सर। हाँ, और जो आप सबमिट करोगे तो वो हम लोगों के पास आएगा, तो विल उसको हम देखेंगे, फिर उसका मार्किंग रहता है, ठीक है। सर तो हाँ वही सर वही था कि जैसे एक तो होता है सर, देखो हार्ड कॉपी तैयार करवाना है या करना है जो भी है, जैसे भी उसको बना, एक होता है सर जैसे जीएस के सॉफ्टवेयर को मैंने यूज करके मैंने मेरी फील्ड में रिक्वायरमेंट है, जैसे हेल्थ केयर में मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को हाँ जीएस में एक ऐसा वो बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है कि मैं अपने पंजाब के जितने भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं उन हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी हाँ चीजें अवेलेबल हैं, वो सारी उनमें मेंशन करूँ। उससे रिलेटेड कुछ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाना है कि कुछ और चीज हाँ बनानी हाँ है। हाँ, हो सकता है। जो आप वट एवर आप थिंक किए हो, आप सोचे हो ना, बहुत जी मुझे बहुत नोवेल कंसेप्ट है। तो उसमें डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। आप मतलब आपका आइडिया ये है कि अभी पंजाब में कहाँ कहाँ हेल्थ सेक्टर है, और हेल्थ सेक्टर में फिर व्हाट आर द फैसिलिटी अवेलेबल देयर, कि एक हॉस्पिटल है, मान लो हॉस्पिटल में क्या क्या डिपार्टमेंट में है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट यस में सर। फिर कितने आपका डॉक्टर स्टाफ कितने हैं, नर्सिंग स्टाफ कितने हैं, इक्विपमेंट क्या है, ये सारा बिल्कुल सर। चीज आप कर सकते हो। फिर कंप्यूटर्स बेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हाँ, हैं। राइट राइट, फिर क्या है, और मैं इसको कुछ ऐड कर दूं, इसमें जी आप ऐसा भी कर सकते हो कि अ, मान लो मतलब ये वन टाइप का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, ठीक है। मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन हेल्थ सेक्टर कैसे, सपोज ये सर। सारा चीज आप जेएस में कर लिए, और अगर थोड़ा सा जी अगर आगे जाए, अगर हम इफ यू आर गोइंग टू डेवलप ए पोर्टल, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक वेब डिजाइन में, वेब जेएस में काम करोगे, तो ऐसा हो सकता सर। है कि सपोज कोई एक जिला है आपका, मान लो, मेरा ज्यादा जिले का नाम ध्यान नहीं है, बट आई थिंक जालंधर ये सब है ना आपका, अमृतसर। अमृतसर, जालंधर, जो जो भी है, सपोज जो जो डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक है। उसको जो है पहले तो वो
टोटल जैसे टोटल स्टेट का अगर उसके पास डाटाबेस हो गया, दैट मीन्स जियो स्पेशल डाटाबेस हो गया, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसको जो डिजीज है, बेस्ड ऑन दैट डिजीज कौन सा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है, अलोंग विथ उसका क्या प्राइसिंग भी है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कितना अप्रोक्सीमेटली व्हाट कुड बी द कॉस्ट, ठीक है, और फैसिलिटी क्या है, सो दैट वो पर्सन क्या है उसको ऑप्ट कर सकता है, मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, जी जी तो ये एक वेरी गुड नोवेल कॉन्सेप्ट, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस। तो इसके इसके ऊपर और अभी जो व्हाट एवर हम डिस्कस किए, ये तो ऑन दिस ओपन फोरम, और अगर कुछ टाइम में आपको कुछ एनीथिंग आपको रिक्वायर्ड है, या फिर मैं भी आपको आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू विथ सम like a doctor or some medical professional who are working in some other educational institution, तो उनके साथ राइट आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू। ठीक है, मेरे भी एक दो स्कॉलर्स हैं जो कि ये सब लाइन में काम कर रहे हैं, सो दैट और दे नो वेरी वेल, मुझसे भी ज़्यादा वो जानते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर डॉक्टर्स। ओके, तो यस आप यू कैन बी कनेक्टेड विद देम, सो दैट और एक अच्छा भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही राइट लाइक जैसे अभी बलविंदर जी ने बोले कि उनको ऐसे कुछ काम करना है, तो आप लोग भी ईच एंड एवरी वन जस्ट आप कुछ याद मतलब ध्यान में रखिए कि मुझे क्या करना है, क्या है, तो उसी चीज में इफ यू कैन डू बाय योरसेल्फ दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर इफ यू थिंक दैट राकेश सर कैन बी लाइक हेल्पफुल कहीं पे, अगर ही कैन असिस्ट, then definitely I am there to help you guys whatever is possible from my side, because I cannot say that जो भी आप प्रोजेक्ट सोचे हो उसमें मैं सब में हेल्प कर सकता हूँ, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, जो हमसे हो सकेगा डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे। ठीक है सर आई हैव ए पंकज, क्वेरी, ये प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करना है सर, ये प्रोजेक्ट? अरे यार ये थोड़ा पूछना पड़ेगा ये लोग का क्या है, क्या डेट है, क्या मैं भी नहीं जानता कितना टाइम है, क्या है, आप थोड़ा सा इंक्वायरी कर ओके लो, सर, नहीं आप तो। एक बार पूछ के। हाँ। हाँ, नहीं तो मैं भी पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा मैं। ठीक है, ओके ओके सर, अभी ओके 2 दिन के बाद मुझे भी थोड़ा जाना है, इग्नो भी काम है, तो मैं जब जाऊंगा ना तो आई विल हैव ए डिस्कशन विद द डायरेक्टर ओके ओके सर, क्या ओके है। हाँ? ओके, तो मैं क्लास में जो है ना ठीक है 28 29 में हम बता देंगे क्या है इसमें। ठीक है, ओके ओके सर, चलो भाई, थैंक यू। और कुछ किसी को थैंक यू बोलना है तो सर। बोलिए, अदरवाइज। थैंक और थैंक यू छुट्टी सर। का मुबारक, कल भी छुट्टी है तो आराम से घर में रहिए। ठीक कृष्ण है जन्माष्टमी सर। हैं? जन्माष्टमी सर, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ भाई, हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी तो आप सबको मुबारक हो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, थैंक यू टेक केयर। सर। सर बाय, थैंक यू सर।